Courtyard is not considered in the plinth area. Which one of the following method is not method of estimating building cost? क्रॉसिंग आउट आउट सेंटर मेथड ऑफ प्रोजेक्शन नहीं होता, तीनों होते हैं। Indian standard for to impose load on classrooms and lecture rooms are not useful for access मिली किसके लिए है? Imposed load on classroom and lecture room floors not used for assembly purpose. Educational नहीं, शायद 3 हाँ। Imposed load है एजुकेशनल बिल्डिंग क्लासरूम लेक्चर के लिए 3, डेड लोड के लिए कंसंट्रेटेड लोड के लिए 2.7। स्टील बार 5 mm is heated from expand and free to expand to no stress. Thermal strain of R delta T. While taking measurement using a table light, the following error occurred: inaccurate centering, inaccurate leveling, imperfection gradients, and error due to improper use of tangent screw. Which one of the following is not a type of personal error? Personal error: centering, leveling, imperfect graduation, imperfect. 3 only. ग्रेजुएशन तो इंस्ट्रूमेंट एरर हो जाएगी, पर्सनल एरर नहीं। एरर इन मैनिपुलेशन, सेंटरिंग, लेवलिंग, स्लिप, टेंजेंट स्क्रू को मैनिपुलेट करना। स्टील बार क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 250 00 selected to pull extension or the gauge length is this decrease in each side of Poisson's ratio. Cross section area, pull, gauge length, change in length upon original length दिया हुआ है। Decrease in each side पॉइजन रेशियो में बराबर। इसमें कौन सा फार्मूला लगने वाला है? डिफॉर्मेशन इक्वल टू पुल। समझ नहीं आ रहा। रेशियो देखना पड़ेगा। म्यू लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल एरिया दिया हुआ है, इसे डाया निकालना है। लेंथ, टेंसाइल लोड, डिफॉर्मेशन बड़ा लंबा होता है। लेटरल स्ट्रेन निकाल ली है, 6 माइनस के लेटरल अपॉन लॉन्गिट्यूड अलग अलग निकाल के यूज किए हैं। 56.4 ये कैसे आया है? दिया हुआ है 56.4 कहाँ दिया हुआ है? DTB से ये डाया निकला। लेंथ ऑफ रेंजिंग पोल, रेंजिंग रॉड, रेंजिंग पोल 3 to 5, 4 to 8। रेंजिंग रॉड 2 to 3, रेंजिंग पोल 4 to 8।
distance 3 centimeter, distance 6 to 10 centimeter, dia 3 centimeter, dia 6 to 10 centimeter बड़ा होता है. Generally not painted but consists of a flag on its top, painted with alternate black and white strips. Timber correct statement बना. Palm and bamboo are example of endogenous. Exogenous tree growth outward and are useful for structural element. Softwood are darker in color and compared to three तो गलत है. ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दो सही होगा, एक है कि नहीं. Palm and bamboo are endogenous सही है. Explanation तो सब सेम है ऐसे. Is an ordinary pollutant causing pollution of air. It is an secondary pollutant. अच्छा, secondary pollutant hydrocarbon, carbon monoxide, oxide of sulfur, formaldehyde. Formaldehyde ही है शायद. Formaldehyde is a secondary pollutant causing pollution of air. Sulfuric acid, formaldehyde, smoke, ozone, fan. सही है. सेकेंडरी के सॉक्स नॉक्स, सल्फर के और नाइट्रोजन के एसपीएम, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इम्पोर्टेंट है प्राइमरी का. Which one of the following statement regarding the transfer reinforcement in the form of lateral ties provided in column is true? Resist any tension due to bending of column, horizontal load, eccentric load or moment. क्या कहा है? Transverse reinforcement in the form of lateral ties is provided. Tension, longitudinal splitting, हाँ यही splitting से हो जाता है. To resist the longitudinal splitting of the column due to development of transverse tension. Transverse reinforcement are provided to prevent the premature buckling of individual bar. Confine the concrete in core. Hold the longitudinal bar in position due to construction. For exact centering of plane table, which one of the following is true? सेंटरिंग के लिए प्लेन टेबल की कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? यू फार्क या प्लम्बिंग फार्क कहते हैं इसको. एलिडेट तो साइटिंग के लिए होता है, स्पिरिट लेवल लेवलिंग के लिए. और स्पिरिट लेवल बबल ट्यूब इसी को कहते हैं इंस्ट्रूमेंट. लेवलिंग के लिए होता है, यूज टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस. प्लम फार्क और प्लम बॉब, प्लम फार्क, यू फार्क भी बोलते हैं इसको. Doubly reinforcement beam considered less economical than a singly reinforcement beam because here is more compression. Steel is under stress. Tensile less economical है क्यों? Concrete is not stressed in fully value. Tensile steel require more than इससे ज़्यादा लगती नहीं. Compressive steel is under stressed. A doubly reinforcement beam is considered less economical than a singly reinforced beam because compressive steel is under stress. Compressive steel under stress होती है सिंगल में, डबली में. Following statement pertain to the design of alluvial channel using glacier theory. Identify the true statement. Hydraulic radius increases with increase in silt factor. Hydraulic radius R बराबर 2.5 V square by F. Increase with increase in silt factor, ये तो उल्टा है. Wetted perimeter increase with increase in discharge. Wetted perimeter 4.75 रूट क्यों? यही है सही. P बराबर 4.75 रूट क्यों.
The sewage treatment unit which works on aerobic decomposition of organic matter. किसमें aerobic decomposition of organic matter. In-half tank sensitization incineration trickling filter. ट्रिकलिंग फिल्टर एरोबिक है, सैनिटाइजेशन तो एनारोबिक हो जाएगा. In-half tank is an improvement of septic tank, but both works in aerobic condition. Rectangular RCC beam of size 2 masonry wall if taken at center apart. Center to center beam has to carry an additional wound radius. क्या करना है? Determine the factor moment. Take factor of safety 1.5 and effective coverage 50 mm. RCC beam size दिए हुए हैं. Simply supported है. 6 meter distance है center to center. Additional its own weight distributor. A beam has to carry in additional to its own weight a distributed load of UDL दिया हुआ 10 किलोन्यूटन पर मीटर और डेड लोड है 5 किलोन्यूटन पर मीटर. डिटरमाइन द फैक्टर मूवमेंट टू मैक्सिमम निकालेंगे. इसकी इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी 6.05 मीटर. कवर जोड़ दिया इफेक्टिव और WL²/8 ये मूवमेंट होता है मैक्सिमम. एल इफेक्टिव W फैक्टर लेंगे. W इसमें दिया 10 और 15. 10 और 5 15 15 × 15 22.5 किलोमीटर. क्या होता है क्या नहीं करता. Determine factor moment 2.5 into L factor 6.05 to the power 2 divided by 8. 102 नहीं आया. 15 इसका यूज नहीं किया. इसका पता नहीं क्या होगा. देखते हैं. कठिन क्वेश्चन लग रहा है. बिट और डेप्थ से इफेक्टिव निकाला है. क्लियर कवर से हमने निकाला था. ये 0.23 का टाइम बड़ा लंबा प्रोसेस है. इफेक्टिव लेंथ निकाल लिया. डेड लोड ऑफ द बीम 0.25 25 3.75 किलोमीटर पर मीटर. डेड लोड ऑफ बीम लाइव लोड. डेड लोड ये दिया हुआ है. डेड लोड ऑफ द बीम भी दिया हुआ है. पता नहीं कैसे. टोटल लोड इतना निकाले हैं. फिर WL²/8 लगाए हैं. एल इफेक्टिव 6 ही रखा है. W नहीं निकाले सही से. द राइज ऑफ मैक्सिमम फ्लड level upstream of weir caused due to the construction of the weir across the river is called. Maximum flood level upstream of a weir caused due to the construction of weir across the river, that is reflux. HFL से ऊपर जितना रखा जाता है. It is an increase in water level that can occur and upstream of a structure such as dam, bridge, culvert that creates an obstruction in the flow. Coupler turbine runner diameter of 9 meters. Head unit discharge of a turbine. इसका फार्मूला नहीं याद आ रहा है.
देखते हैं 1% गॉट राइट आंसर. Unit discharge is equal to discharge upon the square root h. Discharge upon diameter to the power 2 root h. So divided by 9 to the power 2 root h. Which one of the following defect is caused by the vaporization of entrapped moisture of solvent in a painted surface? Vaporization of moisture, that is blistering. फफोले पड़ जाना. Blistering water vapor which is trapped behind the printed surface, उसका उड़ जाना. ब्लूम क्या होता है? जल पैचेस पड़ जाते हैं प्रिंटेड सरफेस पर. फेडिंग, उसका कलर उड़ जाता है. ब्लैकिंग का स्मॉल पोर्शन, छोटा सा पोर्शन हट जाता है. इट इज ड्यू टू पोर एडहेजन. फ्लैशिंग, ग्लॉसी पैचेस आ जाता है, चमक. ग्रीनिंग, दाने दाने बन जाते हैं. रनिंग, रनिंग होता है द पेंट रन बैक एंड लीव स्मॉल एरियाज ऑफ सरफेस अनकवर्ड. छोटा सा एरिया पेंट छोड़ देता है. सरफेस पेंटेड टू स्मूथ. सैगिंग, सैगिंग मीन्स पेंट मोटा होने के कारण नीचे आ जाता है. स्पोनिफिकेशन, formation of soap patches on the painted surface termed as sponification and is due to the chemical action of alkalis. Sponification is due to alkalis. Wrinkling, horizontal surface is too thick printed surface. Defect of wrinkling come preeminent. The minimum yield stress of a steel to be used in steel structure 420. Permissible stress in axial tension for this steel will be axial tension के 0.6 of Fy, 0.6 of 420 252. एक्सियल टेंशन है तो 0.6 लेंगे. बेंडिंग टेंशन होता है तो 0.66 लेते हैं. बियरिंग के लिए 0.75 Fy. इन सीयर मैक्सिमम के लिए 0.4. मैक्सिमम परमिसिबल एवरेज के लिए एवरेज सीयर 0.45. मैक्सिमम सीयर एवरेज सीयर 0.4. मैक्सिमम के लिए 0.45 लेते हैं. और एक होता है बेंडिंग बियरिंग स्ट्रेस, इसको 0.9 लिया जाता है. For dust-free flooring, floor finish material should have which property mainly? Dust-free flooring, the floor finish material should have which property is mainly? Impact resistance, abrasion resistance, compression strength, flexural strength. Floor abrasion या impact abrasion? Or incorrect. Sprinkler irrigation is more suitable than surface methods when the land has very pervious soil and underlying. Sprinkler irrigation is more suitable than surface when the land is steep. दोनों स्टेटमेंट सही लग रहे हैं. स्प्रिंकलर इज बौछार. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैसनरी बॉन्ड इन फिगर. कौन सा मैसनरी बॉन्ड? रैकिंग है कि डच इंग्लिश रैकिंग बॉन्ड? डायगोनल लगा तो रैकिंग बॉन्ड. डच बॉन्ड ये है, रैकिंग बॉन्ड इधर. रैकिंग डायगोनली लगे होते हैं. ब्रिक आर लेड at some inclination to the face of wall. Racking bond. Dutch कहाँ गए? Dutch modification over the English bond consist of alternate course of header stretcher except every stretcher course start with a 3/4 beacon in every alternate stretcher course in the header is placed after the 3/4 beacon. Which method is mostly used to balance the traverse where linear and angular measurement have equal precision? बाउडिच, ट्रांजिट, ग्राफिकल एक्सिस. तो बाउडिच रूल में दोनों का प्रिसीजन इक्वल रहता है. ट्रांजिट एंगल होता है
बॉडी चीज़ें कंपास रूल भी कहते हैं। ट्रांजिट रूल में एंगुलर मेजरमेंट और मोर प्रिसाइज। इन अ फ्लो फील्ड स्ट्रीमलाइन एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस कट कट तो करते नहीं, कट करते हैं ऑर्थोगोनल एक्सेप्ट एट स्टैग्नेशन पॉइंट पैरेलल और ऑर्थोगोनल एवरीवेयर इन द फ्लो फील्ड। कट है नहीं, ऑर्थोगोनली कट करते हैं। स्टैग्नेशन पॉइंट वेलोसिटी जीरो होती है तो वहाँ पे कट नहीं करते हैं। स्ट्रीमलाइन इक्विपोटेंशियल लाइन at stagnation point streamline and equipotensial line have no meaning, so they not cut orthogonally. Irrotational flow of fluids refers to the fluid rotating at its move along. Net rotation of fluid particle about the irrotational है तो net rotation इसका जीरो होता है। Pensky-Martin apparatus is used to determine the softening point, flash and fire point, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी। पेंस्की मार्टिन का यूज़ किया जाता है फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए। फ्लैश एंड फायर पॉइंट के लिए पेंस्की मार्टिन है। सॉफ्टनिंग पॉइंट रिंग एंड बॉल टेस्ट से स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर से ज्ञात करते हैं बटन की। विच मिनरल आउट ऑफ फॉलोइंग फीचर ग्रेट स्ट्रेंथ हार्डनेस एंड रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। विच मिनरल आउट ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक। जिप्सम टार जिसकी हार्डनेस सबसे ज़्यादा होगी, तो जिप्सम की, टाल की, क्वार्ट्ज की, कैल्साइट तो पहले आता है। टाल जिप्सम क्वार्ट्ज की 7 होती है सबसे ज़्यादा। इसमें दिया होगा हार्डनेस 7, क्वार्ट्ज की 7 होती है। Match the following RC reinforced concrete beam, composite, simply supported, fixed. It experiences bending and shearing, carry transfer external load, no freedom to rotate at ends. Fixed beam, no freedom to rotate. 4C के दो ऑप्शन है। 2 material joint as a unit, composite 2 का D, 2D 4C ऑप्शन ए। 1 का भी हो जाएगा आरसीबी का ट्रांसफर लोड के लिए, और 3 का ये हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड विद एक्सपीरियंस बेंडिंग मोमेंट एंड शियर। 2 या 3 ऑप्शन मिल जाए तो मैच हो जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन इज नेग्लेक्टेड इन Tezagi's consolidation theory. Secondary consolidation begins after the end of primary consolidation. Secondary consolidation is related to dissipation of the pore water pressure. ये होता है इनिशियल, प्राइमरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है रीएडजस्टमेंट ऑफ द सेल पार्टिकल, यानी कि 3 ऑप्शन गलत होगा, यानी कि 1 और 2 सही होंगे। सेकेंडरी कंसोलिडेशन में रीएडजस्टमेंट होता है, तो पोर वाटर तो प्राइमरी में निकलता है, इनिशियल में एयर निकलती है। प्राइमरी अकर्स ड्यू टू एक्सपांशन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, ये देखिए लिखा है इसमें। सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन ड्यू टू द प्लास्टिक रीएडजस्टमेंट ऑफ द सॉलिड्स। इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1D होती है थ्योरी। फिर मैच करना है शेप फैक्टर से। रेक्टेंगल, सर्कल, आई सेक्शन, थिन रिंग। तो सबसे पहले जिसको मालूम है उसको बनेंगे। रेक्टेंगल का 1.5, P3 के 2 ऑप्शन, Q4 भी है। आई सेक्शन और थिन रिंग। आई सेक्शन का होता है 1.27, R1 नहीं होता है, R2 होता है। आई सेक्शन का 1.14, अच्छा 1.15 करके था। आई सेक्शन का 1.14, थिन रिंग 1.27 सब दिए हुए। ट्रेंगल का 2.34 एपेक्स अपवर्ड का होता है,
अपेक्स डाउनवर्ड ट्रायंगल का कुछ और होता है, डायमंड का 2, सर्कल 1.7, स्क्वायर रेक्टेंगल 1.5, 1.12 to 1.14 आई सेक्शन का होता है। एच का रेक्टेंगल के ही बराबर होता है, सर्कुलर हॉलो सेक्शन का 1.27, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन 1.67। स्पेसिफाई द करेक्ट फार्मूला ईयर परचेज 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये ईयर परचेज का फार्मूला। The sag is in the dissolved oxygen curve result because dissolved oxygen के कर्व में sag क्यों होता है? Function of rate of addition of the oxygen to stream is function of rate of depletion of oxygen from the stream. Depletion तो होता है function of rate of both addition and depletion. Rate of addition of oxygen in linear but rate of depletion ये 2 या 3. It is a function of rate of addition. फंक्शन ऑफ रेट ऑफ डिक्रीज दोनों पे डिपेंड करता है शायद। हाँ, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, ये कम हुआ फिर उसके बाद सैचुरेशन लिमिट तक पहुंचता है। ऑक्सीजन सैग कर्व इज ऑब्टेन बाय अलजेब्रिक एडिशन ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड रीऑक्सीजनेशन कर्व KD/KR। A continuous slab of a clear span 5 meter effective depth 150 mm supported on this, what is the value effective span ज्ञात करना है। कॉन्टीन्यूअस स्लैब है तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, WL²/12 देखना पड़ेगा अभी। कुछ होता है सपोर्ट WL²/12 से कम है तो सिंपली सपोर्टेड की तरह इसका इफेक्टिव स्पान निकालते हैं। विड ऑफ सपोर्ट अगर L0/12 से कम है तो सिंपली सपोर्टेड की तरह करेंगे तो इसको देखना पड़ेगा। विड ऑफ सपोर्ट जो है 300 mm L0/12 करेंगे 5/12 किया जाता है। सिंपली सपोर्टेड की तरह डिजाइन हो जाएगी। L0/D L0/W में से जो लेस वैल्यू है L0 5 में तो 150 कम है तो 150 जोड़ देंगे। ये क्राइटेरिया है। बट आप सपोर्ट का मान अगर स्पान बाय 12 से कम है तो सिंपली सपोर्टेड ये तरीके से रहेगा L0+ डेप्थ या L0+/2 अगर अनइक्वल है तो। अगर सपोर्ट विड्थ ज़्यादा आती है तो देखेंगे एंड कंडीशन, वन एंड फिक्स एंड अदर इज कॉन्टिन्यूअस है तो अगर वन एंड फिक्स है तो L0 ही हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। वन एंड कॉन्टिन्यूअस एंड अदर एंड इज सिंपली सपोर्टेड तो L0+/2 और L0+W/2 कर देते हैं। नॉर्मली पिच ऑफ द रूफ ट्रस विद एस्बेस्टस सीट शुड नॉट बी लेस देन, एस्बेस्टस सीट वाली रूफ ट्रस की पिच किससे कम नहीं होनी चाहिए, स्पान बाई 4 to 6 लिए जाते हैं। एनी लिक्विड gaseous or solid substance which is discharge process or treatment and disposal system other than domestic sewage is called। any liquid या gaseous या solid substance which is discharged from any premises used for carrying an industry operation or process
और ट्रीटमेंट और डिस्पोजल सिस्टम अदर देन डोमेस्टिक से अधिक है तो डेट इज ट्रेड व्यापार से संबंधित है। अगर डोमेस्टिक नहीं है तो आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ द रोड कंस्ट्रक्शन विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। रोड कंस्ट्रक्शन की कौन सी प्रॉपर्टी में कौन सा मेथड है द लार्ज नंबर ऑफ ट्रांसफर्स जो ज़्यादा है ड्यूरिंग रेन वाटर गेट कलेक्टेड बिटवीन द फिनिश्ड वे के बीच में वाटर कलेक्ट हो जाएगा अगर वर्षा ग्राम बनाएंगे। नीड्स कंप्लीट डाइवर्जन ऑफ ट्रैफिक डाइवर्जन ऑफ अल्टरनेट वे मेथड का जब यूज़ करते हैं तो उसमें अल्टरनेटली स्लैब कास्ट करते हैं, इसलिए बीच बीच में रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है और ट्रैफिक को पूरा डाइवर्जन करना पड़ता है, वन लेन चलती नहीं इसमें। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। द कैनाल फ्लोस बिलो द ड्रेन इन एक्वाडक्ट एंड साइफन एक्वाडक्ट। कैनाल नीचे, ड्रेन मतलब रिवर ऊपर, एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट में। तो नदी के जब ऊपर होती है तो एक्वाडक्ट साइफन एक्वाडक्ट होता है। द ड्रेन फ्लोज बिलो द कैनाल, ड्रेन बिलो है, कैनाल ऊपर है, एक्वाडक्ट और साइफन एक्वाडक्ट हो जाएगा, ठीक। एंड ड्रेन फ्लो above the canal is superpasses and siphon. Aqueduct, siphon aqueduct, superpasses and siphon. जब कैनाल ऊपर रहेगी, रिवर नीचे रहेगी तो एक्वाडक्ट या साइफन एक्वाडक्ट रहता है। जब कैनाल नीचे, रिवर ऊपर तो सुपरपासेज या साइफन होता है। अटरवर्क लिमिट ऑफ अ क्ले सॉइल, लिक्विड लिमिट दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट दी हुई है, केमिकल लिमिट दी हुई है, वॉल्यूम दिया हुआ है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा हुआ है। इसका फॉर्मूला तो आता नहीं है। डब्ल्यू एल डब्ल्यू पी सेकेंड लिमिट डब्ल्यू एस, वॉल्यूम दिया हुआ है 30, लिक्विड लिमिट पर वॉल्यूम 30 और प्लास्टिक लिमिट पर वॉल्यूम 16.6 सिंगल लिमिट पर। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसमें ग्राफ से हो सकता है। डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, इसको ज्ञात करने के लिए SEWG नहीं पता, 0% गॉट राइट आंसर। अभी ज़्यादा लोगों ने दिया नहीं, वैसे देख लेते हैं हम भी। श्रिंकेज रेशियो सबसे पहले निकाला है V0 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 डिवाइडेड बाई W1 माइनस WS। V0 VD 100, लिक्विड लिमिट श्रिंकेज लिमिट से श्रिंकेज रेशियो आ गया। ये फार्मूला तो पढ़ा था सर, श्रिंकेज लिमिट इज इक्वल टू 1 अपॉन श्रिंकेज रेशियो माइनस 1 अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी। श्रिंकेज रेशियो निकाल के स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाला है, तो सेव कर लेते हैं। Determine the equivalent nominal shear stress in a rectangular RCC beam of 200 mm width, 400 mm effective depth. If the shear stress दिया हुआ and the torsional moment is इतना at factor load, nominal shear stress ज्ञात करना है, width depth दिया हुआ है, effective depth, shear stress torsional moment दिया हुआ तो equivalent नॉमिनल, अच्छा इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस ज्ञात करना है VEQ, तो VE प्लस 1.6 TU/B, कुछ इसी तरीके से होता था, देखते आएगा कि नहीं। शियर फोर्स 8 किलो न्यूटन, शियर फोर्स दिया हुआ है, शियर स्ट्रेस पूछा हुआ है, पहले फोर्स निकाल के एरिया निकालना। शियर फोर्स है ना 1.6 TU का मान 2 किलो न्यूटन इंटू मीटर, भी बढ़ता है 0.2 मीटर,
ये 24 किलो न्यूटन आ गया है इक्विवेलेंट शियर फोर्स। इक्विवेलेंट शियर स्ट्रेस निकालने के लिए डिवाइडेड बाय एरिया 24.2.4 463.3। पहले इक्विवेलेंट शियर फोर्स निकाला है व्यू प्लस 1.6 टी बाई बी से, फिर फोर्स से स्ट्रेस निकाल लिया है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया stress, nominal shear stress. During the process of converting the timber to commercial from the defect created due to impression of fallen tool on the surface is called। तो टॉर्न ग्रेन, चिप मार्क, वेन, डायगोनल ग्रेन। डायगोनल ग्रेन तो डायगोनली होता है, वेन डिफेक्ट, टॉर्न ग्रेन और चिप मार्क। तो जो फॉलन टूल जब गिर जाता है तो टॉर्न ग्रेन डिफेक्ट आता है। कन्वर्जन ऑफ टिम्बर से ही सारे हैं, चिप मार्क, टॉर्न ग्रेन, डायगोनल ग्रेन, वेन। फंगाई से हार्ड रॉट, जितने रॉट हैं सारे, जितनी स्ट्रेन है वो सारी फंगी से होती है। रॉट और स्ट्रेन फंगी से, जैसे कि हार्ड रॉट, ब्राउन रॉट, थाई रॉट, सैप स्ट्रेन, ब्लू स्ट्रेन। नेचुरल फोर्स के कारण कप से इंजीनियर शेक्स कर देंगे ड्यू टू नेचुरल सीजनिंग से वो हो जाना, वार्प, कप एंड ट्विस्ट। According to the cost 10262, approximate amount of entrapped air to be expected in normal non-entrant concrete is percent of volume of concrete if the normal maximum size of aggregate is used is 10 mm। तो 20 mm के लिए 0 और 20 mm से कम साइज है, 20 mm से ज़्यादा साइज है। तो 20 mm से कम साइज है, तो जब साइज ऑफ एग्रीगेट कम हो जाएगा तो एंट्रैप एयर का मान 0.8 और 0.821 होता है, 1%। 0.8 बोल रहे हैं, 0.8 तो था शायद। हाँ, 20 mm के लिए 1, 0 नहीं 1 ही होगा। 20 mm के लिए 1%, उससे अगर साइज कम है तो बढ़ जाएगा 1.5%। साइज अगर बढ़ गया तो इंट्रैप्ड एयर की मात्रा कम हो जाएगी। इंट्रैप्ड एयर एज परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ये इम्पोर्टेंट टेबल है 10/262 की। एक्सियल लोड इंक्लूडिंग द weight of wheel and axle provided and that rail has not lost more than 5% of its original section for a 44.5 kg per meter rail section for broad gauge should be। लोड बताना है 5% से ज़्यादा अगर यूज वो नहीं हुआ, लॉस्ट नहीं हुआ, तो कौन सी है, ब्रॉड गेज। 44.5 किलोग्राम प्रति मीटर रेल सेक्शन, ब्रॉड गेज ये है। द एक्सियल लोड इंक्लूडिंग वेट ऑफ व्हील, तो 512 इसका है एक्सियल लोड अपॉन क्या था, वेट अपॉन एक्सियल लोड और अपॉन 512। तो इसमें दिया हुआ 44 पॉइंट वेट पर मीटर लेंथ 512 किलोग्राम है। इसको गुणा करके देखते हैं आता है कि नहीं। 22,784। 22,784 है, 23 टन ले लिया अप्रॉक्स। 510 ये है,
वेट ऑफ रेल इन टन्स डिवाइडेड बाई लोकोमोटिव एक्सियल इन टन्स इज इक्वल टू 1/510. कहाँ चला गया? ये हो गया था 23 टन. The rivets under combined stresses must be subjected to a limit where tau e, tau t दिए हुए हैं, tau bf and tau tf दिए हुए हैं. Allowable shear and tensile stresses in the rivet respectively tau e upon tau bf और tau t upon tau tf should be less than or equal to 1.4. इसका एक क्वेश्चन आया था सुबह, उसमें 1 था, ध्यान देंगे क्या था. ये दिया ना है. अब बोल्ट, अच्छा ये बोल्ट के लिए और रिवेट के लिए. रिवेट अंडर कंबाइंड स्ट्रेसेस मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ लिमिट ऑफ टाउ बी अपॉन टाउ बी एफ प्लस सिग्मा टी अपॉन सिग्मा टी एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1.5. और ये है a bolt required to resist board design shear force VSB एंड अच्छा ये डिजाइन shear force VSB एंड डिजाइन टेंसाइल फोर्स दिया था. इसमें कुछ सेम टाइम सेल सेटिस्फाई ना VSB अपॉन DSB स्क्वायर प्लस VST अपॉन DB TDB की पावर 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1. बोल्ट के केस में ना वो रेट के केस में. द टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम ज़्यादा लग रहा है 45 मिनट में 46 क्वेश्चन में. द टूल विच इज यूज्ड टू मेजर द परपेंडिकुलर टिल्ट टू wall to make sure the bricks are set. पुराने कोड में 36 था, अब नए कोड में 32 हो गया. कंफ्यूजन था मुझे. डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर द सॉइल मास इज लेस देन 60 डिग्री. कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन CV. D is the length of drainage path, single drainage. What will be the degree of consolidation U at after T time? तो TV pi by 4 U जो pi by 4 D to the power 2 CVT और D square pi by 4 U to the power 2 से ज्ञात क्या करना है U. इसको देखिए कितना T स्क्वायर है तो U 4 CVT by D square into pi
का अंडर रूट, 4 का मान 2/d बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर CVT/पाई, 2/d बाहर है, 2/d बाहर, अंडर रूट के अंदर CVT/पाई। TV इक्वल टू π/4 u⁴ जब कंसोलिडेशन का डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60 से कम है, और ये TV बराबर CVT/d⁴ दोनों को इक्वल कर दिया बस। एग्जिट ग्रेडियंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्जिट ग्रेडियंट, सीपेज लोड, क्रीप लेंथ, डेप्थ ऑफ कट ऑफ। एग्जिट ग्रेडियंट सीपेज लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर कोर्स क्लास थ्योरी डेट ये फार्मूला h/d 1/5। 50 क्वेश्चन हो गए, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो ऐसा ठीक है। अच्छा, इसमें तो कंप्लीट कर लेते हैं। What is the term used in the railway engineering for the layout of two crossover that are superimposed enabling movement from either direction? ये तो क्वेश्चन आज सुबह या कल की क्लास में ही मिला था। इसमें क्या था, आइडर डायरेक्शन है तो सीजर्स क्रॉसओवर। The layout of two crossover that are superimposed enabling movement from either, जब सीजर्स होगा तो किसी भी डायरेक्शन से मिला सकती हैं। It consists of 4 points, 6 actual and acute angle crossing, 2 obtuse angle crossing, check rail and straight length होती हैं। What is the lift of a soil for the canal shown in the figure? Lift means center to center vertical distance। 120 का आधा 0.6, 150 का आधा 0.75, 0.6 and 0.75, 1.35, 1.35 है। लिफ्ट वर्टिकल डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर, लीड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है सेंटर टू सेंटर। होमोजीनियस सिंपली सपोर्टेड प्रिस्मेट्रिक बीम ब्रेड्थ B डेप्थ WD, स्पान सब्जेक्टेड टू अ सेंटर कंसंट्रेटेड लोड मोमेंट दिया हुआ। सिंपली सपोर्टेड बीम पर कंसंट्रेटेड लोड दिया हुआ है। लोड कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर अलोंग द स्पान ऑफ द बीम। द मैक्सिमम फ्लेक्सुरल बेंडिंग स्ट्रेस बताना है ऑफ द बीम। M/I सिग्मा/y से मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा का मान ज्ञात करना है। सिग्मा बराबर m इंटू m/z, m/z हो जाएगा। मूवमेंट मैक्सिमम मूवमेंट ड्यू टू पॉइंट लोड क्या होगा, W12/4। मूवमेंट की जगह WL/4 है, सिग्मा इक्वल टू WL/4 और z का मान होता है BD²/6। तो ये होगा 3WL/2 BD²। अच्छा, W का मान भी दिया हुआ है 100 किलो न्यूटन, तो 300 हो जाएगा, 300/2 150 इंटू L/BD², 150 L/BD²। वैसे ही लगा हुआ है डायरेक्ट। इसमें बेंडिंग इक्वेशन से स्ट्रेस का मान निकाल लेना मैक्सिमम। Which one of the following is not a personal mistake? Displacement of arrows, bad ranging, misleading, miscounting of chain length। चेन लेंथ को काउंट नहीं किया, रीडिंग गलत कर दिया, बैड रेंजिंग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरो। तो बैड रेंजिंग भी पर्सनल एरर है, एरो का डिस्प्लेसमेंट इज बैड रेंजिंग ही नहीं होगी, पर्सनल एरर। रेंजिंग नहीं कर पाए, नेचुरल भी हो सकता है, देखते हैं।
बैड रेंजिंग कहाँ है? Error due to bad ranging is a cumulative error and positive in nature. It can be found out by the standard formula, unlike the personal error. Cumulative error है a flow having the Mach number between 1.2 to 3 is called. क्योंकि एक से अधिक है तो सुपरसोनिक में आ जाएगा. हाइपरसोनिक के लिए इसका मान 5 से अधिक होना चाहिए. 1 है तो सोनिक रहता है, 1.8 से 1.3 के बीच में तो ट्रांससोनिक होता है. करेक्ट स्टेटमेंट बताएं. लैमिनेट्स आर प्रोडक्ट्स आर मेड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर टू आर मोर लेयर ऑफ मटेरियल. हाई pressure decorative laminates are pasted on plywood sheets which are used for large area like cabinets, white door, shutter tables. सही लग रहा है दोनों तो. Are the products made by the bonding together two or more layer of material. देखते हैं. Both statement are true. सही है. लेयर बाई लेयर लगाएंगे तो लैमिनेट्स आर द प्रोडक्ट्स मेड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मोर देन 2 लेयर. किसी भी मटेरियल की 2 से ज़्यादा लेयर्स से लैमिनेट्स बनते हैं. ये देखिए सरमाइका, जो सरमाइका बोला जाता है, सरमाइका इज अ ब्रांड ऑफ लैमिनेट्स. सरमाइका ही लैमिनेट्स होता है, वो ब्रांड रहता है. एंड इट हैज़ द बिकम अ कॉमन टर्म ऑफ इंडिया रिफर्स टू लैमिनेट्स इन जनरल. सरमाइका ही लैमिनेट्स कहता है, 2 से ज़्यादा मटेरियल के लेयर लगाए जाते हैं. द मैक्सिमम lateral deflection of a gantry girder between the rails. मैक्सिमम पूछा हुआ है तो इसमें वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए. allowed by 400. ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन के टेबल दी हुई है और लेटरल डिफ्लेक्शन स्पान बाई 400 ही रहता है. For lateral displacement of a gantry girder, the lateral displacement relative displacement between rails supporting 10 mm or crane is span by 400. अगर मैनुअली ऑपरेटेड है तो स्पान बाय 5,500. अगर 500 तक है लोड तो स्पान बाय 750. When crane are traveling overhead and operated electrically operated है 500 किलोमीटर तक स्पान बाय 1000 हो जाता है. मूविंग लोड है तो स्पान बाय 600. ये हो गया. ये सिंपली सपोर्टेड कंक्रीट बीम प्री-स्ट्रेस्ड विद अ फोर्स ऑफ 2500 किलोन्यूटन इज डिजाइन्ड बाय द लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट. इफेक्टिव स्पान कैरिंग टू अ टोटल लोड पर मीटर दिया. सेंट्रल डिप. सेंट्रल डिप मीन्स ई गैप है पी ई. इसका डायरेक्ट है पी इंटू ई डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8. इसे लग सिंपली सपोर्टेड है और पी डब्ल्यू का मान है 40 किलो न्यूटन पर मीटर. एमएम में दिया हुआ किलो न्यूटन मीटर कट जाएगा. एल लेंथ 10 मीटर डिवाइडेड बाय 8. पी लोड का मान 2500 किलो न्यूटन. 1 2 3 4. ई का मान आएगा 100 mm आ जाएगा. 200 mm आ जाएगा. कैसे आया है तो वही कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है. ई पी इंटू ई
W_L² 8, तो P 40 × 10⁻², हाँ P × L हो गया, W × L हो गया 8 × 2500, that is 0.2 मीटर, यानी 200 mm, ठीक। The horizontal platform that used connecting two flights of a steering is called, two flight that is landing, पिच, गोइंग, नोजिंग, इसमें सारे कंपोनेंट दिए हुए हैं। स्कोटिया रहता है जो बाहर निकला रहता है, इसके आगे लगा रहता है। which soil type has the sensitivity less than 1, तो insensitive, 1 से कम है तो insensitive हो जाएगा। और सारी वैल्यूज दी हुई एक्स्ट्रा सेंसिटिव, एक्स्ट्रा क्विक क्ले का 64 से भी अधिक रहते हैं। सेंसिटिव, व्हाट विल बी द कर्व लीड in 1.8 turnout takeoff from straight broad gauge track, कर्व लीड, स्विच लीड, वाला कॉन्सेप्ट पता नहीं है। अच्छा, कर्व लीड इज इक्वल टू 2 × G × N, G is gauge for 1.676 मीटर। सेव कर लो, क्वेश्चन बढ़िया है, आसानी से हो सकता था अगर न्यूमेरिकल का फार्मूला बताओ। ये आर राइट्स एंड प्रिविलेज विच एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एंजॉयज थ्रू और ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। ईजमेंट, दीज आर द राइट्स, राइट्स को क्या कहते हैं, ईजमेंट, फ्रीहोल्ड, प्रॉपर, हाँ राइट है तो ईजमेंट। ईजमेंट आर द राइट्स एंड प्रिविलेज विच एन ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी enjoys through or over the property of another. Precast concrete tile with marble chips on the surface are known as, precast concrete tile with marble, concrete tile marble और concrete tiles में marble chips precast रहते हैं। मोज़ाइक ग्रेनाइट, मोज़ाइक ही रहेगा, इसमें पहले से ही मार्बल चिप्स पड़े रहते हैं। What is accepted range of slump for the mass concrete placed in light reinforced traction in slab beam, slab beam के लिए कम रहता है 25 से 75 mm का स्लैब, लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के लिए। कंपैक्शन फैक्टर बढ़ता है स्लम्प बढ़ने पर। आइडेंटिटी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद यूपीजी के और कंप्यूटर। आइडेंटिफाई द क्वांटिटी रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which description the distance from the axis of reference where the whole mass of area is assumed to be concentrated so as not to alter the moment of inertia about its given axis. डिस्टेंस बताना है, तो डेट इज रेडियस ऑफ गायरेशन के फैक्टर लेंथ, रेडियस ऑफ गायरेशन। ये डिस्टेंस पूछा फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रेफरेंस, जहाँ से होल मास ऑफ सेंटर मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस पूछा है। तो यही होता है फार्मूला के बराबर उड़ाई बाई रेडियस ऑफ गायरेशन। बाकी इंटरनेट के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। फॉर इंटरनेट कनेक्शन यूज टेलीफोन लाइन, यू नीड टू यूएसबी केबल, ईथर, मॉडेम, यूपीएस। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का यूज़ किया जाता है। मॉडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। द कर्नेल सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पार्ट इनसाइड द हार्डवेयर, सीपीयू। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे कर्नल ही बोलते हैं। कर्नल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एप्लीकेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग परफॉर्म्ड एट अ हार्डवेयर लेवल। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर www ब्राउजिंग, तो ऐसा HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो मेल के लिए होता है HTTP का यूज़ होता है, HTTP का यूज़ वेब ब्राउजिंग के लिए होता है। इसका पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। एक HTTPS होता है, यहाँ S सिक्योर होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल
FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये नया है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अ लोडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग अ प्रोग्राम कोड फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन, ये हो जाएगा। एड्रेस इज अ IP एड्रेस, ये क्वेश्चन नहीं पढ़े थे। BC, इसका कोई जानकारी नहीं। फैक्ट फंक्शन, फैक्ट फॉर फैक्टोरियल, ये जो है बिलोंग्स टू मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, लॉजिकल तो नहीं होगा। हाँ, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। फैक्ट मतलब फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल 2:1। Which one of the following bus is usually used to connect the memory devices? कौन सी बस का यूज़ किया जाता है मेमोरी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए? PCI, डेट इज़ पेरीफेरल कंप्यूटर इंटरकनेक्ट, पेरीफेरल कंप्यूटर को इंटरकनेक्ट करने के लिए PCI बस का यूज़ किया जाता है। RTI तो रियल टाइम इंटरफेस हो जाता है। RPI रास्पबेरी पाई इंटरफेस होता है। CBI कॉमन बस इंटरफेस होता है। Which one of the following is an individual data source in मेल मर्ज? मेल मर्ज में इंडिविजुअल डाटा सोर्स कहा जाता है। आउटलुक, एक्सेस, पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट इज एन इनवैलिड। मेल मर्ज में पावर पॉइंट का फाइल नहीं भेज सकते जा सकती, इनवैलिड पूछा था। इन MS पावर पॉइंट यूज टू मूव द नेक्स्ट स्लाइड इन स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो में किस टैब का यूज़ करते हैं? नेक्स्ट स्लाइड के लिए राइट एरो दबा देंगे तो नेक्स्ट स्लाइड शो हो जाएगी। इन MS वर्ड यूज ये टू क्लियर द ऑल फॉर्मेटिंग इन सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो सिलेक्टेड टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए Ctrl+Space यूज़ किया जाता है इन MS वर्ड। सेलेक्ट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। इंकजेट, लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, टच स्क्रीन। तो ये शुरुआत के तीनों प्रिंटर हैं। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है और सब आउटपुट डिवाइस है। Which one of the following is not a feature available in Windows 11? Spinning tool, calculator, iCloud, विंडो मीडिया प्लेयर। iCloud ये नया है, is not available in Windows 11. iCloud is a cloud storage and cloud computing device from Apple. It is not a feature available in Windows 11. You can use menu to set the new time and date. कंट्रोल पैनल में टाइम एंड डेट कंट्रोल करेंगे। वी कैन डिलीट द मैक्सिमम नंबर ऑफ ईमेल एट द टाइम। मल्टीपल, ओनली वन, ओनली 3, 2। मल्टीपल ईमेल को डिलीट कर सकते हैं ना एक बार में। द मशीन लर्निंग इज अप्लाइड इन ईमेल फिल्टरिंग, फेस रिकॉग्निशन, सेंटिमेंटल एनालिसिस। तो सब में यूज़ किया जाता है एडवांस फॉर्म में। अब कंप्यूटर एंड हो गया, UPG का स्टार्ट। व्हेन वाज द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट पास्ड इन UP? इसको मैं हिंदी में कर लेता हूँ। उत्तर प्रदेश में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था 1987 में। भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर देवेश सिंह चौहान कहाँ पर जन्म हुआ था? इटावा में। भारतीय हॉकी के गोलकीपर देवेश सिंह चौहान का जन्म इटावा में हुआ था। यूपी के किस जिले में मलमल पर छपाई का कार्य गुणवत्तापूर्वक किया जाता है? छपाई, मथुरा। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स में कटौती की है यूपी। PM किसान की 17वीं योजना के लिए कितनी धनराशि दी जाए? 17वीं किस्त के अंतर्गत कितनी? 20,000 करोड़ की
89 बटी जाएगी 17 में। दारुल उलूम की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद कासिम ननौतवी। दारुल उलूम जो कि देवबंद में है, मोहम्मद कासिम ननौतवी ने इसकी शुरुआत की थी। इनके साथ राशिद अहमद और मोहम्मद कासिम ननौतवी ने यूपी के देवबंद में दारुल उलूम की शुरुआत की थी। टाटा टोपे ने ग्वालियर रेजिमेंट में कानपुर में कब्जा कब किया? डेट कैसे बताऊं? टाटा टोपे के नेतृत्व में ग्वालियर रेजिमेंट में विद्रोहियों ने कानपुर पर कब्जा जब 6 मई से शुरू हुआ था। मेरठ मई के बाद जून ही होगा। नवंबर 8 नवंबर 1857। किसने यूपी विधानसभा के अध्यक्ष पद को सर्वाधिक 3 बार सुशोभित किया? आत्माराम गोविंद खरे और श्री केसरीनाथ त्रिपाठी। ऑपरेशन ग्रीन कब शुरू हुआ था? 2001 में। ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत 2001 में हुई थी। ऑपरेशन ग्रीन फिर से 2007-8 में शुरू थी। इसे मायावती सरकार ने लॉन्च किया था। 2001 में शुरुआत हुई थी, फिर से 2007-8 में 9 यूपी के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है जुलाई 2024 में मनोज कुमार सिंह। करंट में भी यही होंगे। यूपी मैंगो फेस्टिवल 2024 के दौरान यूपी ने किस देश को 15 टन आम बेचे? जापान को आम बेच दिए। बताओ हमने। कौन सा 5 राज्य के अभी तक 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर हासिल नहीं कर पाए हैं? तो बिहार सबसे आगे और उसके बाद यूपी, झारखंड, मेघालय, मणिपुर। ये ऐसे राज्य हैं जो कि 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर हासिल नहीं कर पाए हैं। यूरेनियम प्लेटिनम यूपी में किन जिलों में पाया जाता है? तो ललितपुर में। गढ़वाला वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? जयचंद गढ़वाला वंश का अंतिम संस्थापक। यूपी के हिस्ट्री बड़ी खतरनाक। राज्य में चतुर्थ विद्या आयोग का चौथा केसी पार्टी ने वित्त 1984 वित्त आयोग ये है। 3-4 तो सही है, केवल 3 सही है। प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन 1994 में किया गया था। इसमें भी तो वही लिखा है, केवल 3 सही। 3 सही है। इसका 243 आई के तहत किया गया था। 5वें के आनंद मिश्रा हैं। भारत सेवक समाज द्वारा हिंडन नदी के तट में किस स्थल की? हिंडन नदी मेरठ मतलब आलमगीरपुर। पूर्वी यमुना नहर के बारे में कौन सा कथन सही है? 1830 में होना सही है। शाहजहां ने शुरू किया था, सबसे पुरानी है, सभी सही है। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो SC सीट्स इन लोकसभा पता नहीं, 17 है। पहले यह अनुसूचित जाति के 79 और 41 थी। वर्तमान में लोकसभा की 17 सीटें हैं यूपी में। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी की जनसंख्या 1998.231। सिंपल क्वेश्चन। यूपी की फर्स्ट प्रसिद्ध खेल हस्ती आकांक्षा सिंह का सर्वा के संबंधित। आकांक्षा सिंह बास्केटबॉल से रिलेटेड है। टोटल क्वेश्चन हो गए 100। यहाँ पे मेरा लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।